بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں آرمی چیف کی۔ جنوبی وزیرستان وڈیرا اسماعیل خان میں جوانوں کے ساتھ عید۔ آرمی چیف نے نماز عید مغربی بارڈر پر جوانوں کے ساتھ ادا کی ہے۔ ISPR کے مطابق عید الفطر کی نماز میں پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے بلا شبہ آپ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کے وطن کے لیے خدمات منہ بولتا ثبوت ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی بے پناہ قربانیوں سے کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی۔ روپے بھر اجتماعات میں امت مسلمہ مقبوضہ کشمیر، فلسطین سمیت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید ڈیٹیلز اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جس میں ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جہاں ہزاروں افراد نے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی امامت میں نماز عید ادا کی۔ کراچی کے نشتر پارک میں نماز عید ادا کی گئی، جس میں شہر کائی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عید کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سیاسی قیادت اور قومی رہنما عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام سے منا رہے ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور اہم قومی رہنماؤں نے اپنے آبائی علاقوں میں نماز عید الفطر ادا کی۔ قومی قیادت نے عید الفطر کی نماز مذہبی عقیدت و احترام سے ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے علاوہ وفاقی وزیر بھی ہمراہ تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے جاتی عمرہ میں اہل خانہ اور کارکنان کے ہمراہ نماز عید ادا کی، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ گری خدا بخش میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں عید کی نماز ادا کی، جبکہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں نماز عید ادا کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے قصور، جبکہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے حیدرآباد میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بونیر اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اہل خانہ کے ساتھ عید منائی۔ میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، سلمان شہباز اور دیگر اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے والدین اور بیگم کلثوم نواز کے قبور پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، ہر کوئی عید الفطر کو اپنے انداز سے منا رہا ہے۔ کچھ لوگ مہمان بن گئے تو کچھ مہمان نوازی میں مصروف ہیں۔ بچوں نے ہلا گلا کرنے کے لیے پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ کوئٹہ میں بچے انڈے لڑانے کا روایتی کھیل کھیل رہے ہیں۔ کھانے کے شوقین افراد کھانے کے اسٹالز پر پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ کراچی سے ہمیں آگاہ کریں گی سمیہ خورشید، فیصل آباد سے وقاص شراز، کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے حنیف بازائی، پشاور سے بتائیں گے جمیل خان۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کراچی اور جانتے ہیں سمیہ خورشید سے۔ جی سمیہ، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, ईद उल फितर के रौनक कराची में भी अपने उरूज पर हैं। ईद की नमाज की अदायगी के बाद खाना वगैरह और शीर खोरमा खा के ईदी खर्च करने का मिशन बच्चों का जारी है और बच्चों ने वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त सफारी पार्क के डायनासोर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और वो डायनासोर की राइड ले रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उनको राइड लेके कैसा लग रहा है। ईदी मैंने 5,000 जमा की है। ओह 5,000, ये तो मुझसे भी ज्यादा ईदी जमा कर ली। इस पार्क के अंदर बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे आराम से बहुत मजे से ईदी को खर्च किया जा सकता है। वालिदैन का यही कहना है कि ईद का मौका है तो बच्चों को घुमाना तो लाजिम है, तो बस अब ईदी खर्च कर रहे हैं बच्चे पार्क्स पे आके। और इस वक्त पार्क में बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पर शहरी जो है एंजॉय करने के लिए, ईद मनाने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है तो ये है सूरत हाल कराची की। समिया आप साथ ही रहेगा, रुक करेंगे फैसलाबाद का जहाँ पे वक़ास शराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक़ास, बताएगा कि फैसलाबाद में क्या हालात हैं। ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे ईद को कैसे मना रहे हैं। घरों में काफ़ी हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है, ईदी जो मिली है उसे भी खर्च किया जा रहा है। उसके अलावा घरों में बच्चों की पसंद के पकवान तैयार किए गए हैं, उन पकवानों से भी बच्चे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों को जो ईद मिली है वो काफ़ी ज़्यादा वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को ये बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। मुझे मिला है 5,000 और हमारी मम्मा ने हमारे मजे मजे के खाने बनाए। वो ईदी मिली है उसे भी खर्च कर रहे हैं और काफ़ी पुरजोश दिखाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ईद के बाकी दिनों को भी ऐसे ही मनाएंगे। जी आपको ले चलते हैं कोयटा जहाँ पे बच्चे अनोखा गेम खेल रहे हैं। इस खेल से मुतालिक हमें अपडेट करेंगे हनीफ बाज़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान मुख्तलिफ अक़वाम का एक गुलदस्ता है। हर कौम का अपने मुख्तलिफ रस्म और रिवाज जो है यहाँ पे है। और ईद हो और अंडे लड़ाना ना हो तो बलूचिस्तानियों का ईद जो है वो मुकम्मल तस्वर होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक पॉइंट पर जहाँ पर नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे जो है वो अंडे जो है वो लड़ा रहे। इस वक्त एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अंडे का खेल इस तरह है, जो अभी आप बैठते हो सटी लड़ाने, तो आपने उठाए, अगर आप हार गए तो अंडा मैं रहोगे, सही है। अगर मैं हार गया तो अंडा आप खाओगे। अगर जो हार गया वो 30 रुपया तावान देगा। इसमें कतार भी है, चबीक में फिर आखिरी अंडे पे फैसला हो जाता है। तो ये एक मुख्तलिफ हम लोगों का एक शौक है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना का कहना है कि अंडे लड़ाना जो है उनका शौक है, उनका रस्म जो है वो है जो सदियों से जो है वो चला आ रहा है। नौजवान और बुजुर्ग तमाम जो है वो इस खेल को जो है वो खेलते हैं। जी काफ़ी अनोखा खेल है। हनीफ अब साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हम पेशावर चलेंगे जहाँ पे जमील खान हमें अपडेट करेंगे। जी जमील, बताएगा कि पेशावर में क्या हालात व वाक़यात हैं। जी बिल्कुल, यकीनन दिन भर मिठाई खाने के बाद और चाय पीने के बाद लोग जो है वो आ चुके हैं इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ होटलों में। और ख़ुसूसी तौर पर जो बिरयानी की दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और बड़ी तादाद में पेशावर के अवाम बिरयानी की दुकानों की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनकी जानिब से ख़ुसूसी डिस्काउंट भी किया जा रहा है। कस्टमर हमारी बिरयानी को पसंद भी करते हैं और हमारी पेशावर में बिरयानी मशहूर भी है, पाक हाजी बिरयानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी अच्छी तरह ईद मना रहे हैं। हो या चिकन बिरयानी हो, वो खाएँ, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। लेकिन दिन भर जो मिठाई खा चुके थे लोग और साथ साथ एक दूसरे के साथ मिले भी थे। तो उसके बाद यहाँ पे अक्सर उमूमी तौर पर बच्चों को भी लाया जाता है और दोस्त भी एक दूसरे को जो है बिरयानी और मुख्तलिफ कानून से तबाज़े करते हैं। जी ईद का पहला रोज़ है, इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। कराची से हमें अपडेट किया समिया खुर्शीद ने, फैसलाबाद से वक़ास शराज हमारे साथ मौजूद थे, कोयटा से हमारे साथ थे हनीफ बाज़ाई और पेशावर से हमें अपडेट किया जमील खान ने। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। ईद का दिन और अपनों से दूरी बहुत तकलीफ दह मरहला है। इस्लामाबाद ओल्ड एज होम्स में बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए ईद के रोज़ खुसूसी इंतज़ाम किए गए। ओल्ड एज होम्स में बुज़ुर्ग ख़वातीन की ईद कैसे गुजर रही है जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा आयशा शेख से। जी आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए इस्लामाबाद ओल्ड एज होम में बुज़ुर्ग माओं के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ईद के पहले रोज़ हमने देखा है मज़े मज़े के पकवानों से यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। यहाँ पर माओं का बड़े अच्छे अंदाज में ख्याल भी रखा जा रहा है। और ईद का पहला दिन है, चूँकि ईद खुशियों भरा त्यौहार होता है और अपनों के संग जब तक ईद ना गुजारी जाए तो ईद का मज़ा बिल्कुल अधूरा रहता है। इस वक्त मेरे साथ एक माँ भी मौजूद हैं, चाहूँगी कि उनसे बात करूँ। बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि ये कोई ऐसा चीज़ है, ये ऐसे लगता है हमारा अपना घर है
और अपने घर में रह रही है। पैगाम यही देती हूँ कि मेरे बच्चे रब्बिल आलमीन जिधर भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तमाम माओं के लिए बहुत अच्छे अंदाज में खाने का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरह की डिशेज़ रखी गई हैं, इनके मनपसंद खाने रखे गए हैं। तो यहाँ पर मौजूद माओं का यही कहना है कि यहाँ पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और वो यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में खुश भी हैं। जी। मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब मुहिम गुजरांवाला को ईद उल फितर पर साफ रखने वाले गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन के साथ डिप्टी कमिश्नर और एसी साहबान ईद की खुशियां मना रहे हैं और वर्कर्स में मिठाइयां और ईदी भी तकसीम की जा रही है। इस वक्त अली शेर मजीद डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। जी अली, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। बिल्कुल, ईद उल फितर की सेलिब्रेशन में गुजरांवाला की ज़िली इंतज़ामिया का एक अहम किरदार है, क्योंकि शहर भर को साफ़ सुथरा रखने के लिए मरीम नवाज़ की जानिब से जो साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ किया गया था, उसकी मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानिब से एसी साहबान के साथ जो है शहर भर की शाहराहों का राउंड अप किया जा रहा है। जबकि गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनमें मठियाइयाँ, जबकि उनमें ईदी भी तकसीम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। गुजरांवाला इतना साफ़ शफाफ मिसाली ज़िला आज तक आपको नहीं नज़र आया होगा। तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हमारी कोशिश है कि हम 3 दिन पूरे ईद के जो आयाम हैं उसमें ये मिसाली जो एक मॉडल है उसको बरकरार रखें। गुजरांवाला के बासी भी जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद की सेलिब्रेशन में साफ़ सुथरा माहौल एक अहम किरदार अदा करता है। जी, आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ईद पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सड़कों पर सफाई का काम जारी है ताकि शहरी खुशगवार माहौल में ईद की खुशियां मना सकें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ है और पहले रोज़ जो है वो मुल्क भर में ईद जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इसी तरह से लाहौर में भी जो है वो ये सिलसिला जारी है। हर कोई अपनों के साथ ईद मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बजाय कि अपनों के साथ ईद मनाने के वो जो है वो लोगों की ईद जो है वो दुबाला करने के लिए, लाहौर को साफ़ सुथरा करने के लिए जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। ना सिर्फ इनकी ज़िम्मेदारी है बल्कि तमाम तर लोगों की ज़िम्मेदारी है कि लाहौर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि उनको चाहिए कि जो अपना जो उनके साथ कूड़ा वगैरह होता है उसको ये जिस तरह से आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डस्टबिन लगाई गई हैं, यहाँ पर इनके ऊपर जो इनके अंदर चीज़ों को डाला जाए ताकि लाहौर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। लाहौर की सड़कों पर जो है वो अपनी ईद भी की है, क्योंकि लाहौर को साफ भी एक तरफ रखना है और लोगों को भी जो है वो ईद जो है वो दुबाला करनी है। तो ये लोग अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। जी ठीक है, चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ईद पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और सड़कों पर सफाई का काम जो है वो जारी है ताकि शहरी खुशगवार माहौल में ईद की खुशियां मना सकें। अपडेट दे रखे हैं आपको इससे मतलब कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ईद पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं ताकि शहरी खुशगवार माहौल में ईद की खुशियां मना सकें। सड़कों पर सफाई का भी काम जारी है। आप जान चुके हैं और आगे बढ़े आपको बताएं कि ईद खुशियों का त्यौहार है और ईदी होम में रहने वाले बच्चे भी इस दिन को जोशो खरोश से मना रहे हैं। नए कपड़े, मीठी सवैयाँ इनकी खुशियाँ दोबाला कर रही हैं। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा समिया खुर्शीद। जी समिया, बताइएगा इससे मुतालिक। ईद उल फितर खुशियाँ बांटने का त्यौहार। वालिदैन से महरूम, घर से दूर बच्चे भी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। ईदी होम के बच्चों का कहना था, यहाँ पे घर का समा है, हमें अब घर की कमी महसूस नहीं होती। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने शीरकुरमा खाया, एक दूसरे को गिफ्ट दिए और बहुत मजा आया। आप पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे हम लोग। अभी हम घूमने भी जाएंगे, फैसल भाई भी आएंगे हमें ईदी देने। अभी हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, भाभी आएगी ईदी देगी, फिर तीसरी ईद को हम घूमने जाएंगे। नए कपड़े, मीठी सिवैयाँ और ईदी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। ईदी होम ने इन सब के खसूसी इंतजामात किए हुए हैं। तोहफे तहाइफ एक दूसरे को दे दिए। बच्चों का कहना था खाना खाने के बाद शाम में पार्क घूमने जाने का भी प्लान है। ईद मुबारक। घर चाहिए बच्चे अपने वालिदैन के साथ नहीं, मगर ईदी होम का प्यार और मोहब्बत इनको ईद की हकीकी खुशी दे रहा है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़, कराची। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ईद पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सड़कों पर सफाई का काम जारी है ताकि शहरी खुशगवार माहौल में
ईद की खुशियां मना सके। इससे मुताल्लिक हम मौक़िफ़ लेंगे। हमें ज्वाइन किया है CEO LWMC बाबर साहब दीन हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले इस सेक्शन के तवस्सुत से आपको ईद मुबारक। सर, ये बताएगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाज़मीन पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, बड़ी खुश आइन बात है। कैसा रहा आज का दिन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से आपको और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और इसमें LWMC के तमाम मुलाजमीन की जो छुट्टियां थी वो मनसूख थी और हमारे 16,000 वर्कर्स ने लाहौर शहर में कल रात से ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि लाहौर के तमाम लोगों को एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट जो है वो ईद के दिनों में प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, वज़ीर आला की हदायत पर पूरे पंजाब में ये ईद पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं सफाई के। जी ठीक है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाज़मीन पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक हमें मौक़िफ़ दे रहे थे CEO LWMC बाबर साहब दीन हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल चुका है, आने वाले दिन आम आदमी के लिए आसान हो जाएंगे। वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की ईद पर बड़ी खुशखबरी। कहा महंगाई मज़ीद कम होगी और प्रोपेगेंडा की सियासत करने वाला हमेशा नाकाम हुआ और होता रहेगा। हमारा मुश्तरका फैसला है, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि इनके हमायती भी नाकाबिल कबूल हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का हल सिर्फ ऑपरेशन ही है जो जारी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुतालबात तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुल्क से मोहब्बत करने वालों के जो भी मुतालबात होंगे उनका खैर मकदम किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। बिलावल भुट्टो ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाह नवाज़ भुट्टो और बहादुर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़री दी है और फूलों की चादर चढ़ाई है और फातह खानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने शहदा के मज़ारात पर हाज़री दी। कैनाल्स के मामले पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। सदर ममलिकत के पास कैनाल्स की मंजूरी का आइनी हक़ नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा तमाम तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुश्मन ममालिक चाहते हैं यहाँ नफ़रतों की आग बढ़ाई जाए। हादसात सियासत की कोशिश अफसोसनाक बात है। जिनको आवाम ने मसरत कर दिया वो लाशों पर सियासत कर रखे हैं। कमी कोताहियाँ हैं, जलाओ घिराव की सियासत को दफन कर दें। एक भी कीमती जान का नुकसान हमारे लिए अहम है। डंपर, बस या टैंकर वाले की गलती है तो इसको गिरफ्तार होना चाहिए। दुआ है वानी पीटाए मस्बत सोच के साथ जेल से बाहर निकले। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।